So we were here doing this question. So I think up to pressure group 11 तक हमने कर लिया था. How to code pressure and the pressure tendency, barometric tendency. So this 5A PP is basically your barometric tendency and how much the pressure is increased or decreased. So this quantity gives that if the, as per the code, if the pressure is decreasing, or if he writes minus 2.8, that means there is a tendency for pressure to decrease. अब आपका आ जाता है ग्रुप 12, 7 WW, capital W1, W2. So this is, if you see the table, अगर आप टेबल खोलते हो, so it's, there are a lot of phenomena which is they are given in the table 12 में, not 12, table 13. अगर आप देखते हो present weather, so in this case you see present weather, it says 7, first digit is the indicator code. So 7 को तो कुछ नहीं करना. Next is 63. So you have to go to 63 in table 13. So there again he is writing moderate rain, not freezing. So 63 code is moderate rain, not freezing. So आपको कुछ नहीं करना, वही 63 when you go open and write down the same thing what is written there. And W1, W2 is basically your past weather. So past weather के लिए, if you see in the past weather, W1, yeah, capital W1, W2 is past weather. यहाँ पे आपके ग्रुप्स में कम हैं. So only 1 to 9. So but here we have to repeat, like there can be two phenomena taking place or same phenomena continuously, like continuous rain. So then we do a double thing. So in this case he has written 6-4. Now you please यहाँ पे थोड़ी सी आपको केयरफुल रहना है. जहाँ पे पास्ट पेपर्स में देखा मिस्टेक हो जाती है. W1, W2 जब आप लिखोगे, ना ये तो डी कोडिंग है, नो डी कोडिंग इज 6-4 लिखा हुआ है. जब आपने कोडिंग करनी है, देयर आर टू फिनोमिनास. देखो पास्ट वेदर, रेन, फॉग और हेज. सो वन इज रेन, सेकंड फिनोमिना इज फॉग और हेज. ये हो सकता है 4 पहले हो, बट इसमें आपने हायर फिगर फर्स्ट लिखनी है. जैसे अगर सपोज दो फिनोमिना है तो 4 and 6 दो थे, तो इसको 4-6 नहीं लिखेंगे, 6-4 लिखेंगे. सो दिस हायर फिगर पहले एंड देन 6-4. तो अगर इसी में हम देखिए रेन में क्या कहता है, 6-4 में 6 इज रेन एंड 4 इज फॉग और थिक हेज. सो कई बार आपके पास दोनों फिनोमिना दिख रहा है, तो यू शुड नॉट राइट 4 and 6. यार रेन भी हो रही है, फॉग भी है, हेज भी है, इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट पास्ट वेदर देयर वाज रेन एंड देयर वाज फॉग. एंड तो ये आपने ध्यान रखना, इट शुड नॉट बी 4-6, इट शुड बी 6-4. Now comes your group 13, 8 NH, CL, CM, CH. So 8 तो आगा इंडिकेटर कोड. NH is again your low cloud amount. So आपके क्वेश्चन में उसने दिया होगा how much is the low cloud amount, 2/8, 4/8, 5/8 sky. So here if I have to decode, so I go to 8 is this thing, next is 4. That means 4 octas or 4/8 of the sky is covered by the low clouds. So 4/8 of the sky. And then next is 3, 6, 4. ये जो तीन कोड हैं ये आपके CL, low clouds, medium clouds and high clouds के लिए. तो if you go to the code book, वहाँ पे अगर आप देखते हो कोड बुक में, तो ये आपको CL, CM कैसे दिखेगा. ठीक है, 8 इंडिकेटर फिगर, NH is the total amount of sky covered by low cloud, वो हमने देख लिया, 4 octas. Then comes CL. अब CL का कोड क्या था, CL का कोड है आपका 3, isn't it? 84364. So 364. So 3 में अगर हम देखें तो 3 में दिखता है CB present, none of the upper part is partly fibrous or in the form of an anvil. So आपका CB is present, cumulonimbus present, none of the upper part is. तो आप ऐसा ही उठा के वहाँ लिख सकते हो डिकोडिंग के टाइम. 3 का मीन्स cumulonimbus present.
और क्यूमुलोनिम्बस प्रेजेंट, ये भी चलेगा। एंड नेक्स्ट इज लो मीडियम क्लाउड्स के लिए 6 मीडियम क्लाउड medium cloud is 6. So code 6 is AC present, isn't it? So AC is your altocumulus present or altocumulus formed by spreading out of this thing. So पहले केस में था cumulonimbus present, medium clouds में altocumulus present, and again low cloud 4/8 sky, low cloud CB cumulonimbus, the summits of which lack sharp. ये देखो complete वही उठा के लिख दिया. Medium clouds AC resulting from spreading out of CUCB. And third code है 4, that is for the high cloud, CH का 4, high cloud CH, that is cirrus in the form of hooks. तो ये आपके लिए थोड़ा सा मैंने देखा है यहाँ पे you get confused, so थोड़ी सी जैसे प्रैक्टिस करेंगे, ये तो आसान है, पास्ट वेदर प्रेजेंट वेदर, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि यस ये क्लाउड्स का क्या लिखें, CL CM, बट इट इज़ वेरी इजी. ये जो लास्ट 3 डिजिट्स है 3 6 4, 3 is for low, 6 is for medium and 4 is for high clouds. DDD DS, again this is the direction, force made good last 3 hours, 3 and 4. So 3 gives you the direction and V gives you the speed. So code 4 जो है 16 to 20 knots. So ये भी आपके पहले से 222 है वो उसका सर. No, 222 is basically a indicator code. 222 will always remain. This is the indicator code. Yes. Yeah. तो लास्ट के 2 ही डिजिट जो हैं, ये देखो DS VS मीन्स एक डिजिट DS का, एक डिजिट VS का. सो फर्स्ट डिजिट DS मीन्स डायरेक्शन का कोड 3 एंड VS का कोड 4. सो हम टेबल खोलते हैं, जब DS VS के टेबल में जाते हैं, डायरेक्शन में 3 देखिए तो साउथ ईस्टर्ली दिखाएगा एंड 4 का 16 to 20 knots. Similarly, next is your again sea temperature. वही टेम्परेचर तो हमने काफ़ी भर लिए. 0 SN is 0 is again indicator code. SN is a positive negative. 0 means positive, 0 0 positive. And then ये 3 डिजिट जो है TW 3 digits 17.5 डिग्री सी वाटर टेम्परेचर. एंड उसके बाद ये आपके 3 कोड जो हैं, दिस इज बेसिकली सी पीरियड, पीरियड ऑफ वेव्स PW एंड हाइट ऑफ वेव्स. एंड दूसरा वाला फर्स्ट, दिस इज द स्वेल, डायरेक्शन ऑफ द स्वेल, एंड सेकंड डायरेक्शन, ये स्लैश मीन्स नो सेकंड स्वेल प्रेजेंट. सो नॉर्मली एक स्वेल ही हमें दिख जाए वो बहुत है, सेकंड स्वेल तो नोबडी कैन मेक आउट. सो दिस इज द DW इज द स्वेल डायरेक्शन, and similarly PW and HW is the period of swell and height of swell. So पहला waves है, second is the swell. तो ये भी easy है. यहाँ पे एक चीज़ आपको केयरफुल रखनी है और याद रखना है कि जब आप इसकी कोडिंग करोगे तो इट इज़ नॉर्मली डबल, कि जैसे PW is the period of wave, वो तो एज इट इज़ आ जाएगा. पीरियड ऑफ वेव हम यहाँ से पढ़ते हैं 0.8, दैट मीन्स 8 सेकेंड्स. एंड नेक्स्ट इज द हाइट ऑफ वेव्स. हाइट ऑफ वेव्स उसने कोडिंग किया 8. सो कोडिंग के टाइम में वी ऑलवेज डबल, वी ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 2. सो डी कोडिंग के टाइम में इसको डिवाइड बाय 2, सो 4 मीटर्स. सो मोस्टली अगर आपको कोडिंग का मैसेज आता है कि कोड दिस वेदर रिपोर्ट, तो वहाँ पे मेरा स्वेल होगा और द सी जो होगी, सी हाइट 4 मीटर्स है, उसको 0.4 नहीं, उसको मैं डबल करके लिखूंगा, डी कोडिंग में हाफ कर दूंगा. एंड सिमिलरली द डायरेक्शन ऑफ द स्वेल, सो डायरेक्शन 3 को छोड़ दीजिए, 0 2, वही वाली डायरेक्शन 0 2 मीन्स 0.20 डिग्रीज, स्वेल इज कमिंग फ्रॉम 0 एंड स्लैश मीन्स नो सेकेंड स्वेल. एंड सिमिलरली यहाँ पे आपका फर्स्ट दिस पीरियड ऑफ स्वेल एंड हाइट ऑफ स्वेल, यहाँ पे भी सिमिलर डबल. सो डी कोडिंग में इसको हाफ, एंड जब कोडिंग करना है तो 3 मीटर को मैं 6 मीटर दिखाऊंगा. चलो एक क्वेश्चन करें अपने आप, ठीक है. आई एम हियर. सो
फिर जहाँ जहाँ मुश्किल आएगी देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन लिखिए बच्चे, डिकोड द फॉलोइंग वेदर रिपोर्ट। कैन ऑल ऑफ यू सी द स्लाइड? दिख रहा है क्वेश्चन 1? क्या कहते हो? कैन यू ऑल सी द क्वेश्चन? यस सर। या इसको लिख लीजिए, देन अपना Yes, sir. टेबल बनाइए। या ओके।
लिया बच्चे, क्वेश्चन लिख लिया सबने? यस सर। चलो ठीक है, अटेम्प्ट कीजिए, कहीं पे समझ नहीं आता प्लीज लेट मी नो। कॉलम बना लीजिए कोड के, वाई वाई जी जी, एल ए, एल ओ। सर एक बार एक समझा दीजिए सर। हाँ जी बोलिए। सर 6 नंबर का सर IRIXHVB, तो IR का कैसे? सर IR टेबल में गया, ओके उसमें नंबर सर 4 है। ओके, आई आर के टेबल पे आप जाते हो, नंबर 4 टेबल में जाते हो तो आपको क्या दिखता है वहाँ पे? उसमें नंबर 4 टेबल नहीं है सर, IX में तो नंबर 4 है। आई आर बेसिकली आपका, इसमें वो कहता है आई आर इज अ, कि हमने जो प्रेसिपिटेशन ग्रुप है, प्रेसिपिटेशन मींस बारिश, लाइक रेन। नाउ ऑन द शिप we know that it is raining, we can report that the weather it is raining, but we cannot report how much rain, we cannot measure the amount, isn't it? There is no यस सर। instrument. Normally we don't have the water rain gauge. किनारा में क्या होता है, there is a rain gauge जिससे वो बताते हैं, न्यूज में आपने देखा होगा so many millimeters of rain, so we have no यस instrument such. तो इसके लिए उसने कहा है ऑन दी शिप्स जहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, अगर आप कोड 4 पढ़िए, कोड 4 कहता है this indicator code for the precipitation is omitted, means कि हमारे पास there is
नथिंग, प्रेसिपिटेशन अमाउंट नॉट अवेलेबल या ओमिटेड, प्रेसिपिटेशन अमाउंट 0। तो यहाँ पे जो नॉर्मली आपका जो कोड आएगा IX में आप देखिए, तो वी राइट इट इज ओमिटेड बिकॉज वी कैन नॉट राइट द अमाउंट ऑफ रेन, सो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑल द टाइम वी राइट 4। IR आपका 4 ही रहेगा, क्यों? बिकॉज वी हैव नो मीन्स ऑफ एस्टिमेटिंग द Yes, अमाउंट sir. ऑफ, या तो इसमें ओनली फॉर ये प्रिसिपिटेशन ग्रुप और नोट एंड मैनुअल स्टेशन मैंड स्टेशन इतना ही लिखना है सर। या ओनली फॉर दिस कोड IR को हमेशा आपने 4 ही करना है। 4 आए तो आपने लिख देना IR दिस थिंग प्रेसिपिटेशन ग्रुप ओमिटेड। यस सर, थैंक यू सर। Precipitation group not sent because I have no means. Next is IX. IX क्या होता है? IX means कि स्टेशन मैंड है, ऑटोमेटिक है, कैसा है? शिप्स आर नॉर्मली मैंड, एंड देन इसके अंदर मैं पास्ट वेदर एंड प्रेजेंट वेदर भेज रहा हूँ कि नहीं भेज रहा हूँ। सो इसमें उसने लिख दिया 415। यस सर। 1 उसने लिखा है 1, सो सेकंड इज द 1। 4 तो आपका इंक्लूडेड है या 1 को अगर आप टेबल में देखो तो क्या दिखाता है? या मैंड इंक्लूडेड। यस, मैन एंड इंक्लूडेड। व्हाट इंक्लूडेड? ये ऊपर जो लिखा ये वाला जो मैंने यस हाईलाइट सर, की। ग्रुप 7। यस, दैट मींस दिस इज पास्ट वेदर प्रेजेंट वेदर, कि आप Yes, जो sir. वेदर रिपोर्ट भेज रहे हो उसमें आप पास्ट वेदर एंड प्रेजेंट वेदर इंक्लूड कर रहे हो। दैट इज द मीनिंग। स्टेशन इज मैन, शिप इज मैन, एंड ये ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, इसके लिए उसका कोड 1 बन गया। Yes, sir. Thank you, sir. एंड स्टेशन ग्रुप 7WWW1 इंक्लूडेड। गुड। So next 93। कंपेयर कीजिए, टेबल से खोल के कंपेयर कीजिए। यू शुड कन्विंस की यस, फिर आप कंपेयर कीजिए मेरे आंसर के साथ कि हाँ यार आपको अलग तो नहीं कुछ मन में आ रहा।
कौन से ग्रुप में कौन से बच्चे अभी तक? NDDFF हो गया? कर रहा हूँ सर NDDFF। सर ये लास्ट वाला समझा दीजिएगा, 3 to 7 वाला। हो गया सर। ये 3 to 7 वाला एक बार बता दीजिए। ओके, 3 to 7 जो है बेसिकली अगर आप देखिए स्वेल, isn't it? So 3 to 7 जो अगर आपको दिखाता है, चलो उसी पे जाते हैं। 3 to 7, यस, ये आपकी स्वेल की डायरेक्शन है। DW मीन्स डायरेक्शन ऑफ द स्वेल। सो ये स्लैश मीन्स नो सेकेंड स्वेल। अगर इफ रिपोर्ट में अगर इफ ही इज रिपोर्टिंग देयर इज फर्स्ट स्वेल, सेकेंड स्वेल, देन दे विल राइट, बट नॉर्मली ये स्लैश का मीनिंग नो सेकेंड स्वेल। सो फर्स्ट स्वेल की direction. So in this case he has given 3 to 7. 3 to 7 means again 3 is your indicator code and 27 is the direction. ये देखा ना 2 digit है, DW1 DW1, that means 2 digit 27. 27 is the direction. अभी 27 डायरेक्शन कौन सी? 270 डिग्री। अभी हमने डायरेक्शन में पढ़ा था ना, विंड डायरेक्शन एंड ऑल दैट। सो एवरेज जो है 270 आ जाती है। नॉर्मली आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम 264 और 265 टू 274। यस सर। हाँ जी, तो वही वाली डायरेक्शन चलेगी। अगर आप उस टेबल में देखिए तो ज़्यादा उसमें निटी ग्रिटी में जाना नहीं। 27 मीन्स 270, 28 कोड है 280, 29 मीन्स 290। सो ये आपकी डायरेक्शन आ गई, स्वेल डायरेक्शन फ्रॉम 270 एंड नो सेकेंड स्वेल। सर अगर सेकंड स्वेल होगी तब ये दूसरा कोड आ जाएगा, पाइप वाला। हाँ, फिर वो DW2, ये देखा ना, जैसे DW1 DW1 है तो वहाँ पे DW2 DW2, तो वहाँ पे भी उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। फर्स्ट स्वेल फ्रॉम 270, सेकंड स्वेल फ्रॉम मे बी 300 डायरेक्शन से। और फिर सर PW2 फिर HW2 वाला आ जाएगा। यस। सो नॉर्मली अगर आपको जैसे कोडिंग में, अभी हम कोडिंग नहीं कर रहे, डी कोडिंग में हम जाते हैं कि डी कोडिंग में ही हैज मेंशन 3 to 7 // तो यहीं से द मोमेंट यू लुक एट द क्वेश्चन कि ये 3 to 7 // मीन्स ये स्वेल की डायरेक्शन है एंड दिस स्लैश मीन्स नो सेकेंड स्वेल। तो यहीं से आपको 3 इंडिकेटर कोड, फर्स्ट स्वेल की डायरेक्शन 270, 27 मीन्स 270। ओके, तो यहाँ तक पहुँच के तो जस्ट कंपेयर। तो ग्रुप 7 and DDFF 7/8 sky 70510। 7 is again the amount of your sky cover. So 7 octas come 7/8 sky covered with clouds, and then DD 05 and FF 10. So 05 is the wind direction. Again आप ऐसे भी लिख सकते हो 045 to 054 degrees, बिकॉज यही दिया हुआ है वहाँ पे। अदरवाइज इफ यू आस्क मी आई विल राइट 05 को अगेन 05050, 050 डायरेक्शन से है विंड, बिकॉज आई डोंट थिंक एनीबडी सो एक्यूरेटली कैन से यार 1 डिग्री विंड डायरेक्शन हम मेकआउट कर सकते हैं। बट एनीवे क्वेश्चन है, प्रेफरेबली प्लीज राइट इट लाइक दिस, ठीक है। वहाँ से आपने पिकअप करना है। सो 045 to 054, 10 मीन्स 10 नॉट्स। ग्रुप 8 1 SNTT, again 1 is the indicator code, 0 to 85, 0 1 indicator, 0 is the sign, 285 is the temperature, 28.5. Group 9 2 SNTD dew point, same, 2 को छोड़ दीजिए, 0 is for plus and 208 is the dew point, 208 means 20.8. 4 pp pressure, 4 अगेन छोड़ दीजिए, इज द ग्रुप इंडिकेटर, अगेन 0088, ये 4 डिजिट है। तो यहाँ से पता लगता है, देखो 4 पी है तो ये 4 डिजिट है। 0088 इज द प्रेशर। अब हमें पता था कि 0088 मीन्स 1000 ओमिट किया होता है उसका, 1000 का 1 ओमिटेड, तो हम वो 1 लगा देते हैं, 1008.8 मिलीबार। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कहीं पे भी कुछ भी समझ नहीं आएगा प्लीज स्टॉप मी सर ये समझ नहीं आया छोटा छोटा, बिकॉज इस क्वेश्चन को हमने पूरा 100% ठीक करना है। अगेन प्रेशर टेंडेंसी 5A PP, 5 इंडिकेटर कोड, प्रेशर टेंडेंसी छोटा a इज द बैरोमेट्रिक टेंडेंसी या प्रेशर टेंडेंसी, a इज 3। सो 3 क्या दिखाता है, अगर हम टेबल खोलते हैं
एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजिंग और स्टडीली देन राइजिंग। तो 3 वहाँ पे उसका कोड आ गया कि राइजिंग है, स्टडी है, डिक्रीजिंग है। सो जो भी उस 3 टेबल के कोड में लिखा वही यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। एंड 036 इज द डिग्रीज और द अमाउंट by how much it is increasing or decreasing. So it is plus 3.6. So atmospheric pressure decreasing or steadily then rising. Barometer higher than before by 3.6. 7 WW, capital W1 W2, 7 को छोड़ दीजिए, small W1 और small WW is 06. So 06 code is widespread dust in suspension in air and past weather. Now this is the WW is the present weather, past weather, W1 W2 thunderstorm, fog and haze. तो यहाँ पे ये 2 कोड होंगे 9 and 4. So you can write 9 में thunderstorm and fog and haze दोनों आए। 13 NH CL CM CH. So again total amount cloud 4 octas, 4 है। Then 299 is 2 is for low cloud, 9 is for middle and again 9 is for high. तो आपके सामने लिखा है लो क्लाउड। कैसे लिखेंगे? बुक में तो सर बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इसको छोटा कैसे करेंगे? क्या छोटा? जो आपको डोमिनेंट दिखता है ना, जैसे ये देखा CU ऑफ मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एक्सेंट इज प्रेजेंट। आप इंडिकेट कर रहे हो लो क्लाउड ऐसे हैं, मीडियम क्लाउड ऑल्टोक्यूमुलस प्रेजेंट इन क्योटिक स्काई जनरली एट सेवरल लेयर्स। आप इवन पूरा भी लिख दीजिए, आपको थोड़ी सी स्पेस जाएगी ना, जाने दीजिए लाइनें, तब क्या। आपने अपने उस पर आंसर शीट पे ये लिखा है कोड, आपने ये भी लिखा, ये लिखा, उसके बाद आने दीजिए 5-6 लाइनें, तब क्या होगा। ओके, तो उसमें टाइम मत वेस्ट कीजिए कि उसको प्रेसी बनाने का या उसको छोटा करने का, यार मैं क्या लिखूं क्या ना लिखूं। जो भी आपको कोड मिलता है स्ट्रेट वे 4 आपने लिख दिया, ये 2 था, 2 में लो क्लाउड का क्यूमुलोनिम्बस 1 लाइन ज़्यादा भरने दीजिए। ओके, 9 का मीडियम क्लाउड्स एंड अगेन सेकंड 9 जो हाई क्लाउड्स के लिए CC। तो डीकोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कोडिंग में है कि कौन सा मैच करता है। कोडिंग में भी देखना, जब हम कोडिंग करेंगे तो वो कोई छोटी सी एक ही लाइन दे देगा, क्यूमुलस ऑफ मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एक्सटेंट, हो सकता है उसमें काफ़ी लंबा लिखा हो, तो ये लाइन अगर मैच करती है वही वाला कोड दे देना आप। ओके, बाकी डायरेक्शन एंड DSVS, डायरेक्शन एंड योर स्पीड ऑफ द शिप, विच डायरेक्शन द शिप इज मूविंग। तो ये भी वेरी नाइसली रिटर्न। 4 and 2, 4 इज द डायरेक्शन। अगेन टेबल में कोड दिया हुआ है 4 का, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। लास्ट 4 आवर्स साउथ एंड 6 to 10 knots. Then comes again sea water temperature 0 छोड़ दीजिए, next 0 is for positive sign and 206 is the temperature, that is 20.6. Then PW HW, PW means waves का period and again height of waves, period of waves, height of waves 1 है, उसका मैंने हाफ कर दिया। ठीक है, एनी डाउट एनीबडी? सबका हो जाएगा तो बच्चे बताओ। थोड़ी सी फिर कोडिंग की इंट्रोडक्शन जाते हैं कि कोडिंग के क्वेश्चन कैसे आते हैं, कोडिंग को कैसे करना है, वो भी सिंपल है, इसका जस्ट अपोजिट है। हो गया सर। चलो गुड। चलो ये देखिए, ये कोडिंग का एक अटेम्प्ट करते हैं। कोडिंग में आपका
दिस इज व्हाट इट इज, डेट, शिफ्ट टाइम, शिफ्ट पोजीशन, कोर्स स्पीड, इसको लिख लीजिए। सो आई हैव रिटन इन वैसे तो क्वेश्चन आपको रनिंग उसमें आएगा, बट उसको मैंने सॉर्ट आउट किया है। पोजीशन, कोर्स स्पीड, विंड, प्रेजेंट, पास्ट वेदर, क्लाउड, विजिबिलिटी, एयर टेम्परेचर, ड्यू टेम्परेचर, इसको लिख लीजिए। आई थिंक देन वी विल अटेम्प्ट। सर क्वेश्चन में कॉल साइन तो दिया हुआ नहीं है। कोई बात नहीं, कॉल साइन को खाली छोड़ दीजिए, कुछ भी लिख देंगे कॉल साइन। ये तो एक एक्सरसाइज है जीएमटी, थोड़ा मैं यहाँ डाल ही देता हूँ कॉल साइन। तो लिख लीजिए, मैं डाल दूंगा अदरवाइज।
लिख लिया बच्चे, क्वेश्चन लिख लिया सबने? क्या कहते हैं, क्वेश्चन लिख लिया सबने? यस सर। तो आपको टाइम मिलेगा तो, या टाइम मिलेगा तो, हाँ जी, या गो अहेड, somebody saying something? चलो मैंने कहा टाइम मिलेगा इसको अटेम्प्ट करना, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में इसको पिकअप करेंगे। ओके, ओके सर, थैंक यू। या थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके डियर, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।